Good morning, dear student, and welcome to online class. Today, I am going to tell about what is expanding scope of right. We begin this chapter by discussing the significance of right. In much of the chapter, we have focus only on fundamental right in the constitution. आपने इस चैप्टर में डिस्कस किया कि व्हाट इज़ द फंडामेंटल राइट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों का क्या महत्व है. यू माइट थिंक दैट फंडामेंटल राइट्स granted by the constitution are the only right citizen have. This is not true. While fundamental rights are the source of all right, our constitution and law offer a wide range of right. Over the year the scope of the right of expand, मतलब फंडामेंटल राइट्स में आपने मौलिक अधिकारों में केवल सिटीजन के राइट के बारे में नहीं पढ़ा, बल्कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे लॉ हैं उसके जो भी बेनिफिट्स हैं वो सबको मिलने चाहिए. संविधान द्वारा जो भी मौलिक अधिकार हैं उसमें नागरिकों को मिलने वाले अधिकार ही नहीं बल्कि हमारे संविधान और हमारे कानून और हमें बहुत सारे अधिकार देते हैं, जो हमें सारे अधिकारों का दायरा दिन पे दिन जो बढ़ता गया. समटाइम इट्स आइडियल्स टू एक्सपेंशन इन द लीगल राइट्स दैट द सिटीजन कैन एंजॉय फ्रॉम टाइम टू टाइम. द कोर्ट हैव जजमेंट टू एक्सपेंड द स्कोप ऑफ राइट. Certain right the like to right freedom of press, right to information and right to education are derived from the fundamental rights. और फंडामेंटल राइट्स में बहुत सारे राइट्स जुड़ते हैं, जैसे राइट टू फ्रीडम एंड राइट टू एजुकेशन एंड राइट टू RTI जैसे बहुत सारे इसमें इस राइट्स में जोड़े गए. द गवर्नमेंट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल द चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 14 ईयर्स. और इसके साथ साथ जो भी 14 ईयर से कम बच्चे हैं उनको फ्री एजुकेशन दिया जाए, ये भी हमारे राइट्स में जोड़े गए. पार्लियामेंट हैज़ इनैक्ट द फ्रीडम ऑफ थ्रू द एक्सपेंशन. वी हैव राइट टू सीक इन्फॉर्मेशन फॉर अ गवर्नमेंट ऑफिसर. रिसेंटली द सुप्रीम कोर्ट हैज़ एक्सपेंडेड द मीनिंग ऑफ द राइट टू द हिस्ट इंक्लूड द राइट टू द फूड also. Right are not limited only on fundamental rights to enumerate in the constitution. Constitution provide many more rights which may be not be fundamental rights. For example, the right to property is not a fundamental right, but it is the constitutional right. Right to vote in election is an important constitutional right. जैसा कि आपने स्कूली शिक्षा में हर भारतीय का अधिकार बन गया है कि जो भी 14 वर्ष से वे सभी बच्चे जो फ्री और एजुकेशन पाना चाहते हैं वो भारत सरकार की जिम्मेदारी है. और पार्लियामेंट में जो भी पर्सन हैं उनके जो भी ऑफिस हैं या मंत्रालय हैं, जो भी सूचना पाने का अधिकार है RTI है, उसको भी फ्री दिया गया है. इसके अतिरिक्त जो भी इंडियन पीपुल हैं वे संविधान में कई दूसरे अधिकार भी प्राप्त हैं, जैसे संपत्ति का अधिकार हो गया और इस तरह के कई अधिकार भी हैं जो फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ इन अधिकारों को भी दिया गया है. Sometimes the expansion takes the place in the what is called the human right. There are the universal more claims that the may or the not be in recognized law. The sense this claim not to right going to the dimension of president earlier. With the expansion of democracy all over the world, there is a great pressure on government to accept this claim. Some international convent have also contributed to expansion of right. Now, international convent or economic and social culture right. The international convent recognize many rights to are not directly a parts of the fundamental rights. The Indian constitution, this is the not yet become the international treaty, but human rights activists all over the world sees this standard human rights the include. First, right to work opportunity to everyone to earn livelihood by working. इसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय राइट्स भी कुछ दिए गए हैं जो फंडामेंटल राइट्स में नहीं हैं, जैसा कि पहला राइट टू वर्क अपॉर्चुनिटी टू एवरी टू अर्न लाइवहुड एंड वर्किंग. सेकंड, राइट टू सेफ एंड हेल्दी वर्किंग कंडीशन, फेयर wages that can be provide decent standard of the living for the worker and their families. Right to adequate standard of living including adequate food, clothing and housing.
and right to social security and insurance, right to health medical care during illness, special care for women during children and the prevent of the epidemics, and right to education, free and compulsory primary education, equal access to higher education। तो इस तरह के बहुत सारे राइट्स दिए गए हैं। जैसे एपिडेमिक आ गया, कोई महामारी आ गया, इसके बाद आपको सिक्योरिटी देना इंश्योरेंस के द्वारा, मेडिकल फैसिलिटी, इलनेस, स्पेशल वुमेंस ड्यूरिंग चिल्ड्रन चाइल्ड बर्थ, बच्चे के जन्म के समय महिलाओं को कुछ स्पेशल छुट्टी दिए गए हैं। ये सब हमारे मौलिक अधिकार के साथ साथ ये राइट दिए गए हैं। Thus, the scope of rights has been expanding. New rights are spreading over time. They are the result of the struggle of the people. New rights emerge and societies develop, or as the constitution are made. The Constitution of South Africa guarantees it the citizens several kinds of the new rights. Now, right to privacy, so that citizen or their home cannot be searched, their phones cannot be tapped, their communication cannot be opened. तो ये सारे साउथ अफ्रीका में दिए गए हैं कुछ अधिकार, जिनकी बातों को, कम्युनिकेशन को टेप लिया जा सकता है, सुना जा सकता है। फिर है इसके साथ साथ राइट टू इन्वायरमेंट इज़ नॉट टू हार्मफुल देयर हेल्थ ऑफ वेलिंग, राइट टू हैव एक्सेस द एडुकेट हाउसिंग, एंड राइट टू हैव एक्सेस टू हेल्थ कैन सर्विस सफिशिएंट फूड एंड वाटर्स, नो one may be refuse emergency medical treatment. Many people think the right to work, right to health, right to minimum life and right to privacy should be made fundamental rights to Indian as well as the what do you think? इसके बारे में, इस राइट्स के बारे में आप क्या सोचते हैं। फिर नेक्स्ट हेडिंग है प्रोटेक्शन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। तो पार्ट थर्ड, द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी 6 काइंड्स ऑफ राइट्स और द सिटीजन ऑफ इंडिया। जैसा कि आपने फंडामेंटल राइट्स में 6 राइट्स पढ़े थे, उसके साथ साथ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज empowered to protect right if any individual institution or government encroach upon these rights to aggrieved person can move the courts of law, and the Supreme Courts can issue various right to the protection of all the right, such as the right is habeas corpus, right of certain of the will, right of probation। जैसा कि आपने पढ़ा था कि जैसे मौलिक अधिकारों का मामला हो तो सीधे आप सर्वोच्च न्यायालय या किसी राज्य के उच्च न्यायालय में जा सकते हैं। न्यायपालिका इन अधिकारों का संरक्षक करता है। और इसके साथ साथ जो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को हमारे संविधान की आत्मा हृदय कहकर संबोधित किया गया था। तो देश की विधायिका हो, चाहे लेजिस्लेटिव, एक्जीक्यूटिव या जुडिशियल, ये सारे फंडामेंटल अधिकार हैं। मौलिक अधिकार को हनन के मामले में अभी कोई भी पीड़ित व्यक्ति हो तो न्याय पाने के लिए न्याय जा सकता है, लेकिन यदि मामला सामाजिक और सार्वजनिक हित में हो तो वो जनहित याचिका जारी कर सकता है। तो आज के लिए बस इतना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।